Jai Hind everyone. See, this is the new place where I'm making the video. So sometimes brightness problem will be there. So if you are facing any kind of brightness problem or आपका अगर board पे ठीक से नहीं दिख रहा है, so please inform me. So I will adjust the brightness. So let's start today's topic, median of the group frequency data. Student, first of all, let me tell you what is meant by median. See, we have been studying measures of central tendency. In this, we have seen mean. In mean, we have seen that if it is ungrouped data, क्लासेस नहीं होंगे, सिंपल डेटा है, स्कोर अवेलेबल है, तो अपन क्या करते हैं, सबको ऐड करते डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्कोर करते, दैट इज मीन. If it is group frequency, so we have three methods to find out the mean. That is direct method, assume mean method, and step deviation method that you have already studied. In median, when it is ungrouped, means classes नहीं, ये सिंपल सा स्कोर है, कुछ नंबर्स दे दिए. So that time what you were doing, you were just supposed to 8 3 1 7 are the five data which is given, and they ask what is the median. So that time what you were doing, you were just preparing this database as in the order of ascending or descending. So I'm going to prepare this in ascending order, say 1 2 3 8 and 7. Now what is the median of data? So I will find out the middle number, which is the median of the data. There is no need to say that which is bigger, which is smaller. Just I will say the middle, at the middle of the data by ascending or descending order. That is called as, that data, that score is called as median of the given database. Now if you are getting two numbers, so what you are doing, if you are getting two numbers at the middle, because the number of scores are, suppose this is also 9, so 9 will be here, so you will say that sir इधर दो है तो middle में तो ये दोनों आ रहे हैं. So what you will do, you will just simply take them, add them and divide by 2, you will get the data, that is 5.5. Yes, so this is what the median, it means the middle number. If you are getting two numbers, add, divide by 2, that is the median of the given data. So this is for ungroup, यहाँ पे grouping नहीं है. But when we are talking about group frequency, so there is new method that we are going to study now. So write down median of group frequency. Yes, distribution table, group frequency distribution table का जो group frequencies होंगे उनके median हमको निकालनी है. So let us start. So I'm going to teach you median by using first example of practice set 6.2. So I'm going to rub this practice set 6.2, question number 1. Students, here you will see that when we are talking about median, so we have to find median class. So median class कैसे निकालते हैं, वो क्या है, वो पूरा डिटेल में हम एग्जांपल लिखने के बाद ही समझेंगे. So let me write the example. So मैं वो एग्जांपल रीड कर लेता हूँ और उसको एक ऐसे ही रेडीमेड आंसर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे रिपीटेशन ना हो यहाँ पे. यस, न्यू प्लेस, सो बोर्ड विल बी डेंजर काम है अभी आज. या सो डेली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके, यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे, 2 कॉलम तो दिए, एक कॉलम हमको प्रिपेयर करना होता है. क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं. यस, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16. Then next, number of workers 150, number of worker 500, number of worker 300, number of workers. एक कंपनी समझ लीजिए. Following table show the classification of number of workers and the number of hours they work in the software company. एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करने वाले कर्मचारियों का ये डेटा है कि 8 से 10 घंटा काम करने वाले 150 कर्मचारी, 10 से 12 घंटा काम करने वाले 500 कर्मचारी, 12 से 14 घंटा काम करने वाले 300 कर्मचारी, और बहुत ग्रेट लोग भी होते थे 14 से 16 घंटा काम करते, जिनको फैमिली पता नहीं है, वो 50 लोग हैं ऐसे. ओके, सो फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क डेली. ये जो नंबर ऑफ आवर्स है, ये स्कोर है ना, ये रिपीटेशन है, नंबर ऑफ रिपीटेशन कि 8 to 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है. भाई 8 घंटा लिखो, भाई 8 घंटा लिखो, भाई 8 घंटा रिपीट. 8 घंटे वाले, 8 से लेकर 10 घंटे वाले रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है. सो हमको इसमें से ही डेटा मिलेगा मीडियन का. याद रखिए, आप मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो, आपको इसमें से ही मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा. याद रखना, ये क्लियर बात हो जानी चाहिए. अभी ये हो गया.
So this is what the classes. Yes, and this is the frequency which is Fi. इसको लिखना जरूरी होता है, ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा. Okay. Now, just a minute. Let me pause the video. Okay, it happens. Now, classes are given, frequencies are given. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी याद रखिए. ये 150 को डायरेक्टली एज इट इज 150 लिख लीजिए. ओके, ये 150 में यहाँ पे अभी इसके लिए लिखना है ना, तो ये 150 में 500 ऐड कीजिए तो कितना आएगा 650. 650 में 300 ऐड कीजिए कितना आएगा 950. और 950 में 50 ऐड कीजिए कितना आएगा 1000. हो गया काम. बस इतना ही करना है आपको. अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया कि आपको क्या क्या कौन कौन सी चीजें लगने वाली है. सो ये आपका जो फॉर्मूला है मीडियन दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. अब ये सी एफ एफ क्या है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. नाउ ये जो है सारा ये है एल, इट मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. अब आप बोलोगे ये मीडियन क्लास क्या होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, सी एफ क्या है, पहले एफ की बात कर लेंगे. एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. एच क्या है, इंटरवल मीन्स साइज. साइज कितनी साइज है उस क्लास की, साइज ऑफ मीडियन क्लास. ये बहुत समझने वाली चीज है. अब ये हो गया. अब सी एफ और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कितनी है. देखिए कितनी हो जाती है इन सबके एडिशन 1000 हो रही है. देखिए ऐड करो सबको 1000 आता है. सो देयर विल बी एन, एन इज इक्वल टू 1000, नो प्रॉब्लम. समेशन है, समेशन ऑफ एफ आई मीन्स एन होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एन. और सी एफ, सी एफ क्या है, जो मीडियन क्लास होगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास होगी उसकी प्रीसीडिंग. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास मीन्स मीडियन क्लास की पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास. ये सारी चीजें आपको पता हो गई. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मीडियन क्लास नामक एक वर्ड आ रहा है, जो वर्ड बहुत समझना इंपॉर्टेंट है. तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, नाउ लेट्स फाइंड. तो ये जो था ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बोर्ड में लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है. बोर्ड में आपको कहाँ से लिखना है वो समझ लेना है प्लीज. नहीं तो आप बोर्ड में ये लिखोगे डोंट राइट दिस वन. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, लेट अस सी. तो अभी यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है. लेट्स फाइंड मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास लिखेंगे तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, n बाई 2 मीन्स 1000 अपॉन 2. जो फ्रीक्वेंसी होंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ रहा है 500. अब 500 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो. कहाँ पे है क्या 500 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रही है. 500 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 500 फाइंड करना है आपको, दिख रहा है. अगर 500 नहीं है क्या, नहीं है 500, इसकी नहीं बात करो, इसकी बात करो. यहाँ पे 500 नहीं है तो 500 से बड़ा नंबर लो. अब 500 से बड़े नंबर तो 3 है, 1 2 3, बट पास वाला बड़ा नंबर लो. अब 500 के पास में 950 है क्या, 1000 है क्या, नहीं 650 है. तो ये जो होगा 650, ये जिस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट क्लास इज माय मीडियन क्लास. सो देयरफॉर मीडियन क्लास डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं. इज इक्वल्स टू क्या है 10 to 12. दिस इज द मीडियन क्लास. ये क्या हो गई, मेरी मीडियन क्लास हो गई. जैसे मीडियन क्लास मिलती है तो ये जो नंबर है इसको डैश ऐसे एरो दिखाना, यहाँ पे लिखना है एफ. क्या लिखोगे, एफ. और देखो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है. अब सी एफ दिख रहा है आपको, सी एफ वर्ड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू द क्लास ऑफ मीडियन. क्लास ऑफ मीडियन की पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150. इसको क्या लिखोगे आप लोग, डैश करके सी एफ लिखोगे. ये लिखना जरूरी, इसको मार्क्स
अब यहाँ पे क्या क्या चीज आएंगी, यहाँ पे एल लिखेंगे हम, एल। बोलो ये क्लास की लोअर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 10, करेक्ट। क्लास की हाइट क्या है, दोनों का गैप कितना है, देखो 12 - 2 2 का गैप है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है इस क्लास का, बताइए। ये क्लास का फ्रीक्वेंसी है 500, और हमारा जो सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, सी एफ कितना है यहाँ पे, सी एफ कितना है 150, और n/2 वो भी डायरेक्टली नंबर लिख ले, n/2 कितना है 500 आ गया यहाँ पे। तो वी हैव वन फॉर्मूला, ये डायरेक्टली रेडीमेड आप लिख देना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वी हैव, क्या फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये याद रखना पड़े, ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, फॉर्मूले याद करो भाई, नहीं तो फिर पूरा करके जाया जाने वाला है। सो L प्लस 2 n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L क्या है अपना, L ऑब्वियसली, L क्या है, L 10 प्लस यहाँ पे वैल्यूज लिखी, n/2 कितना है 500, माइनस CF कितना है 150 अपॉन F कितना है 500 इंटू H कितना है, H 2 है। 10 प्लस ये कितना आएगा 350 अपॉन 500 इंटू 2, 10 प्लस 350 इंटू 2 700 अपॉन 500, 0 0 0 0 गेट कैंसिल, इक्वल्स टू 10 प्लस 7 अपॉन 5। चलो अभी करो क्रॉस मल्टीप्लायर, आंसर निकालो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 प्लस ये 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 बचे 2, 5 4 जा, तो कितना आएगा 11.4। क्या ये मीडियन है। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर, क्या लिखोगे, द मीडियन आवर्स, द मीडियन वर्किंग आवर्स, मीडियन वर्किंग आवर्स कितना आया 11.4 आवर्स, 11.4 आवर्स का वर्क वो लोग करते हैं। तो होप वॉट एवर आई टॉट रिगार्डिंग मीडियन ये आपको समझा होगा। सेकेंड थिंग एक डिस्कस करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी, अब ये तो ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि 8 to 10 क्लास होता है, यहाँ पे 11 to 12 होता है। कुछ बात आ रही है समझ में, 11 to 13 आ जाएगा क्लासेस में, बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 14 to 16, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 to 19, ऐसे क्लासेस आ जाते हैं। तो ये क्लासेस का एक फॉल्ट ऐसा है कि ये जो 10.5 है ये कहाँ पे डालूंगा मैं, क्योंकि 10 तक ही, यहाँ पे 11 तक की 10.5 का डेटा आएगा तो नहीं आएगा, मीन्स ये क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमने प्रीवियस क्लासेस देखी तो प्रीवियस क्लासेस कैसी थी, 8 10 फिर 10 12 फिर 12 14 फिर 14 16 ऐसी थी, है कि कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यूटी थी उनमें। यहाँ पे अगर कोई क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो इन क्लासेस को कंटिन्यूअस करना होता है। गिवन में अगर कंटिन्यूअस नहीं तो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। कंटिन्यूअस कैसे होंगी कि 8 के पीछे वाला डेटा लिख लो, क्या आएगा, हाफ कम करो 7.5, 10 के आगे हाफ जाओ, आगे आप जाओ तो 10.5, 11 के पीछे देख लो, समझ लो 11 के पीछे जाओ, लोअर क्लास के पीछे जाना है हाफ, कितना आएगा 10.5, 13 से 5 पॉइंट आगे जाओ तो कितना आएगा 13.5, 13.5 करेक्ट हो गया। अब 14 से 0.5 पीछे आओ, कितना आएगा 13.5, 16 से 0.5 आगे जाओ तो 16.5, लोअर को रिवर्स करो, हायर को आगे बढ़ाओ, 17 का पीछे जाओ 16.5, 19 को आगे जाओ तो 19.5 होगा। ये कंटिन्यूस क्लासेस हो गई, देख लो। सो दिस इज व्हाट, अगर डिसकंटिन्यूस है बस इतना ही करना है कि कंटिन्यूस कर लो, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहते। वो कंटिन्यूस करने के भी 1 मार्क्स मिलता है या फिर हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। सो होप वॉट एवर आई टॉट यू, यू अंडरस्टूड। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए मैं एक एक एग्जांपल इस तरह से ले रहा हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ये मेरा मानना है। अगर आपको डिफिकल्टीज आएंगे तो मैसेज आता है, बट कोई ग्रुप में नहीं मैसेज कर रहा है, तो इसके 2 रीज़न होंगे, एक तो आप स्टडी नहीं कर रहे हो फर्स्ट रीज़न, या फिर सेकंड रीज़न ये होगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं तो पॉजिटिव रीज़न लेके चल रहा हूँ, बट नेगेटिव रीज़न कब निकलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीक आपके यहाँ पे विजिट करूँगा घर पे ना, तब सारे रीजन्स निकलेंगे। यस मैं भी बोल देता हूँ, मंडे से जितने हमारे क्लास के बच्चे सबके यहाँ पे मैं विजिट करने वाला पर्सनली, देन यू विल सी, मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितना कर रहे हो। ओके, सो मीट यू टुमारो ऑनलाइन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।